morning, students. Today I am going to discuss with you the second short story of your textbook Boli, written by K. Abbas. Full name of this author is Khwaja Ahmad Abbas. Now I'll throw some light on his biography. Khwaja Ahmad Abbas was born on 7 June 1914 and died on 1 June 1987. He was born in Punjab, the home of celebrated Urdu poet Khwaja Altaf Hussain Hali. He was a well-known film director, novelist, screenwriter and a journalist in Urdu. He was awarded the Padma Shri in 1969. Now what this Padma Shri is? It is the fourth highest civilian award in the Republic of India after the Bharat Ratna, the Padma Vibhushan and the Padma Bhushan. It is celebrated by the Government of India every year on India's Republic Day. ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है. सिविलियन अवार्ड मीन्स मोस्ट रेस्पेक्टेड अवार्ड. और किस लिए दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए. और पद्माश्री अवार्ड फोर्थ पे आता है. फर्स्ट वन है भारत रत्न, सेकंड है द पद्मा विभूषण एंड द थर्ड वन इज पद्मा भूषण. और हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे देती है रिपब्लिक डे पर. सो इट वाज ऑल अबाउट द पद्माश्री एंड अबाउट द ऑथर्स बायोग्राफी. Now I am coming back to the story Bholi. Bholi means innocent. You can write down the meaning of Bholi. Bholi means innocent. And the author is K. Abbas. Full name is Khwaja Ahmad Abbas. Bholi is also the protagonist of the story. Bholi is also the protagonist of the story. Protagonist means main character or leading character of the story. You can also write down the meaning of protagonist. Protagonist means main character of the story. So, Bholi is the protagonist of the story and the entire story revolves around her. Important point related to the story. Bholi is a very sensitive story with a dramatic end. From her very childhood, she was neglected at home. What role does the teacher play in her life? Does she come up to the expectation of the teacher? भोली एक सेंसिटिव स्टोरी है जिसकी एंडिंग बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है और बचपन से ही उसे घर में नज़रअंदाज किया जाता था. What role does the teacher play in her life? उसकी लाइफ में टीचर ने क्या रोल प्ले किया? जब वो इसकी लाइफ में रे ऑफ होप बनकर आती है तो उसकी टीचर ने क्या रोल प्ले किया? क्या भोली खुद से टीचर्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाती है? But the question is, why she was neglected at home? What is the reason behind this? क्या रीज़न है? क्यों इसे निगलेक्ट किया जाता था घर में? ये हमें स्टोरी पढ़ के पता चलेगा. Now let's commence the story. Her name was Sulekha, but since her childhood everyone had been calling her Bholi the simple tone. हर जो है ये भोली के लिए यूज़ किया गया है. मीन्स भोली का रियल नेम सुलेखा होता है लेकिन बचपन से ही उसे भोली के नाम से बुलाया जाता था. भोली मीन्स इनोसेंट और सिंपल टोन का मीनिंग है अ फुलिश पर्सन इजली ट्रिक्ड बाय अदर्स. यू कैन राइट डाउन द मीनिंग ऑफ सिंपल टोन. अ फुलिश पर्सन इजली ट्रिक्ड बाय अदर्स. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार राम लाल. भोली जो होती है ये फोर्थ डॉटर होती है रामलाल की. रामलाल इसके फादर का नाम है. और जो नंबरदार होता है, नंबरदार मीन्स एन ऑफिशियल हु कलेक्ट रेवेन्यू, जो पैसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करते हैं. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi, the simple tone. जब ये 10 महीने की होती है तो ये कॉट से गिर जाती है, सिर के बल गिर जाती है और उसकी वजह से इसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से ये बैकवर्ड चाइल्ड बन जाती है और उसे बोहली द सिंपल टोन के नाम से बुलाया जाता है. बैकवर्ड मीन्स नॉट सो इंटेलिजेंट. At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. जब ये पैदा हुई थी तब ये बहुत ज़्यादा फेयर एंड प्रिटी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी. लेकिन जब ये 2 साल की हो जाती है तो इसे स्मॉल पॉक्स हो जाता है. स्मॉल पॉक्स मीन्स जिसे हम चीचक की बीमारी बोलते हैं.
ले only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black poke marks. सिर्फ इसकी आईज बच जाती हैं, लेकिन जो पूरी एंटायर बॉडी जो इसकी होती है वो डिसफिगर्ड हो जाती है. किसकी वजह से? ब्लैक पोक मार्क्स. पोक मार्क्स मीन्स स्पॉट्स आर स्कार्स ऑन द स्किन, मतलब जो कुछ निशान रह जाते हैं हमारी स्किन पे. और बोहली पे ये निशान किसकी वजह से रह गए? स्मॉल पॉक्स की वजह से. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. ये छोटी सुलेखा जो होती है ये 5 साल तक कुछ भी बोल नहीं पाती है, बट इवेंचुअली जब ये बोलना स्टार्ट करती है तो इसे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है. स्टैमर मीन्स फंबल, जो हम हकला के बात करते हैं. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. और इस वजह से बाकी बच्चे इसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाते थे और उसे मिमिक करते थे. मिमिक मीन्स कॉपी करना, इमिटेट करना किसी को. यू कैन राइट ऑन द मीनिंग ऑफ मिमिक. मीन्स इमिटेट और कॉपी. द बेस्ट वन इज इमिटेट. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटल, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कम बात करती थी. Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. रामलाल के 7 बच्चे थे, जिनमें से 3 बेटे और 4 बेटियां थी, और सबसे छोटी जो थी वो भोली थी. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. फार्मर ये था, लेकिन क्या फार्मर था? प्रॉस्पीरियस. प्रॉस्पीरियस मीन्स रिच. और इनके घर में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी. All the children except Bholi were healthy and strong. सारे बच्चे except भोली को छोड़ के इसके सारे बच्चे strong थे, healthy थे. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. और इसके जो बेटे थे रामलाल के, उन्हें सिटी भी भेजा गया था स्कूल में पढ़ने के लिए, और बाद में उन्हें कॉलेज भी भेजा गया था. Of the daughter Radha, द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. और इसकी जो बेटियां थी रामलाल की, उनमें से जो सबसे बड़ी थी राधा, उसकी पहले ही शादी हो गई थी. द सेकेंड डॉटर चंपा, और जो सेकेंड डॉटर थी चंपा, उसकी मैरिज जो थी, मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड चंपा. सेकेंड डॉटर मंगला की शादी भी फिक्स्ड हो गई थी, और जब उसकी शादी हो जाती तब रामलाल ये सोच रहा था कि वो अपनी थर्ड बेटी चंपा के बारे में सोचेगा. दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल, बट इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम. वो सारी लड़कियां जो थी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग थी, अच्छी थी दिखने में, हेल्दी गर्ल्स थी, और उनके लिए जो था दूल्हा ढूंढना मुश्किल नहीं था. ब्राइड ग्रूम होता है दूल्हा. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. लेकिन रामलाल जो था, अगर उससे किसी की परेशानी थी, वो थी उसकी बेटी भोली की. क्यों? क्योंकि ना तो उसके पास गुड लुक्स थी, क्योंकि उसकी जो स्किन थी वो ख़राब हो चुकी थी, उसके चेहरे पे स्पॉट्स पड़ चुके थे स्मॉल पॉक्स की वजह से, और ना ही ज़्यादा वो इंटेलिजेंट थी. सो आई विल स्टॉप हियर. टुमारो वी विल कंटिन्यू अगेन. थैंक यू.